When the prince was alive, he was very happy. जब तक वो जिंदा था, वो पैलेस में रहता था. पैलेस में हर तरफ, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी. Now once this prince died, उसका एक बहुत बड़ा सा स्टैचू इरेक्ट कर दिया गया, वो भी एक पेडेस्टल पे. वहां से इस प्रिंस के स्टैचू को पूरा शहर दिखता था. He could see the entire city. And at that time, he saw the miseries of the people. He saw how people are poor, they are homeless, they are hungry, they are starving. And वो सारी miseries देख के, वो सारी sadness देख के, ये prince भी बहुत दुखी होता था. So in this chapter, we'll study the story of this prince. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. इस प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसीलिए कहा जाता था बिकॉज वेन ही वॉज अलाइव ही ऑलवेज रिमेन्ड वेरी हैप्पी. अब जब वो मर गया, उसकी याद में शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टैचू इरेक्ट कर दिया गया. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. फॉर आईज ही हैड 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. Gilded means to be covered with something, a coating on something. Sword hilt means the handle of a weapon or a tool, especially a sword, dagger or knife. Here you can see in this image he is holding a sword. So the handle of the sword is known as the sword hilt. The statue of this happy prince was covered with thin layers of gold. So he was coated with gold. And instead of the eyeballs, there were 2 bright sapphires. Sapphire is a precious stone. It is blue in color. Here you can see such kind of stones had been put in place of his eyes. And in the hilt of his sword, in the handle of his sword, a bright ruby stone. This is again a precious stone. It is red in color. This had been placed over here. So this is the description of the statue of the happy prince. Let us read further. One night there flew over the city a little swallow. Swallow is a tiny bird like this. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Now again and again the writer is referring to the swallow as he and his. Although the bird is not a human being, still the writer is referring to it as he and his. So he says that all the friends of the swallow had flown away to Egypt. वो उड़कर इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले. लेकिन ये बर्ड उनके साथ नहीं गया था. लेकिन अब बाद में इसने भी सोचा कि मुझे भी अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट जाना चाहिए, इसलिए ये उड़ता हुआ इजिप्ट जा रहा है. Now Egypt, I'll just tell you, जिसको नहीं पता, Egypt is a country in Africa. In the northern part of Africa, there's a country, a huge country called Egypt, and the river Nile, which is said to be the longest river of the world, flows through Egypt. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Now this bird kept on flying on its way to Egypt, and at night it reached this city, the city of the happy prince. Now the bird wanted to stay somewhere for the night. So the bird says, where shall I put up? Put up means where should I live for the night? Where should I stay? And then the bird further says, I hope the town has made preparations. What kind of preparations? The bird is saying that I hope इस शहर ने मेरे रहने के लिए कुछ इंतजाम किया हुआ है. Obviously, the bird does not mean what the bird is saying. We can say probably the bird is being humorous. Let us read further. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. Now when this tiny bird saw this huge statue, the bird thought that the bird would stay there for the night. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. So the bird thought that this is a good place for me to spend the night. There is shelter also, and there is a lot of fresh air. So the bird came and alighted. Alighted means descended. So the bird stopped
and it sat in between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. Now when this bird sat between the feet of the happy prince, it was surrounded by gold. As we read in the beginning, the statue was covered with gold. So the bird thought that the bird has a golden bedroom because it was surrounded by gold all around. And then as the bird was about to sleep, as it was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. Suddenly, a large drop of water fell on the swallow. What a curious thing, he cried. Curious means strange, अजीब सी बात होना. एकदम से ये बर्ड हैरान था क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन पानी की बूंद उस पर आकर गिरी. ना कोई बारिश हो रही थी, ना कोई बारिश का मौसम था. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब इस स्वॉलो को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ना तो आसमान में बादल थे, स्टार्स चमक रहे थे, और उसे लगा कि फिर भी बारिश हो रही है जो कि उसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं, और ये चीज उसे बहुत अजीब लगी. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. पहले एक ड्रॉप गिरा पानी का और फिर थोड़ी देर बाद एक और ड्रॉप गिरा, और इस स्वॉलो ने सोचा कि ये स्टैचू बिल्कुल बेकार है, इसके नीचे मुझे शेल्टर नहीं मिल रही क्योंकि ये बारिश से मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मुझे इसके नीचे सोना नहीं चाहिए. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. तो इस स्वॉलो ने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं किसी घर की चिमनी में, चिमनी आप सबको पता है, घर के ऊपर जो एग्जॉस्ट लगा होता है किचन के बाहर जिसका धुआं जाता है उसे चिमनी कहते हैं. तो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं किसी चिमनी में जाकर शेल्टर में रात बिता सकता हूं, और उसने सोचा कि मुझे यहां से चलना चाहिए, ये स्टैचू बेकार है, इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग मी, इट इज नॉट गिविंग मी शेल्टर फ्रॉम द रेन. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल and he looked up and saw, what did he see? इससे पहले कि ये बर्ड उड़ता, एक तीसरा पानी का ड्रॉप उसके ऊपर आकर गिरा और उसने ऊपर की तरफ देखा, और उसने क्या देखा? Let us read ahead. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज होती है. जैसे ही ये स्वॉलो ऊपर देखता है, वो क्या देखता है कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, और ये जो पानी की बूंदें हैं ये उसके आंसू हैं जो कि उसके गोल्डन कलर्ड चीक से नीचे बह रहे हैं. फर्दर, जब स्वॉलो ने इस हैप्पी प्रिंस के चेहरे की तरफ देखा, ही वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, और उसको रोता देखकर इस बर्ड का दिल भी दया से भर गया, और उसने पूछा कि तुम कौन हो? और स्टैचू ने आंसर दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं. Why are you weeping then? asked the swallow. अब स्वॉलो ने सोचा कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? Why are you sad? Why are you weeping? You have quite drenched me. Drenched means to soak with water. गीला कर देना. स्वॉलो ने कहा कि तुमने मुझे भिगो दिया है अपने आंसुओं के साथ. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. तो अब यहां पर हैप्पी प्रिंस अपनी स्टोरी सुना रहा है स्वॉलो को. The happy prince says that when he was alive and he had a human heart. Human heart means ऐसा दिल जो धड़कता है, जो जिंदा है. तब उसे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, उसे नहीं पता था कि दुख क्या होते हैं, क्योंकि वो एक पैलेस में रहता था जहां पर दुख अलाउड नहीं था एंटर होना. अलाउड नहीं था एंटर होना मीन्स कि वहां पर खुशियां ही खुशियां थी. देयर वॉज जस्ट हैप्पीनेस अराउंड हिम.
और उसके कोर्ट में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग काम करते थे, वो सब उसे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, क्योंकि वो हर वक्त हैप्पी रहता था, हर वक्त खुश रहता था, उसने कभी दुख देखे ही नहीं थे। और वो कहते हैं कि ऐसे ही खुशियों में मैं जिया और खुशी खुशी में मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. Now just see, क्या कह रहा है ये हैप्पी प्रिंस? ये कहता है कि जब मेरा ह्यूमन हार्ट था तब मैं कभी नहीं रोया, मुझे पता ही नहीं था आंसू क्या है, क्योंकि मैंने खुशियां ही खुशियां देखी थी, मैंने कभी दुख नहीं देखे थे। और अब जब मैं मर गया हूं, उन्होंने मुझे इस स्टैचू के रूप में इतनी ऊंची पोजीशन पे, इतने बड़े पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया है, और मुझे आसपास पूरा शहर दिखाई दे रहा है। शहर की अगलीनेस, एक बुरा रूप शहर का मुझे देखने को मिल रहा है, जिसमें मुझे दिख रहा है कि कितने लोग हैं जो कि मिजरी की लाइफ जी रहे हैं। मिजरी मीन्स सैडनेस, लैक ऑफ फूड, हंगर, लैक ऑफ मनी, होमलेसनेस, ये सब कुछ मैं देख रहा हूं। और अब जबकि मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, लेड हियर रेफर्स टू द मेटल, वो कह रहे हैं कि अब मेरा दिल एक मेटल का बना हुआ है, उसमें कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं अपने आसपास इतना दुख देख रहा हूं, इतनी सैडनेस देख रहा हूं, तो मैं रो रहा हूं। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब फिर से ये जो स्वॉलो बर्ड है ये ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। ये जो हैप्पी प्रिंस है ये इतनी दुख भरी कहानी सुना रहा है अपनी, लेकिन स्वॉलो अपने दिल में क्या सोचता है कि क्या ये प्रिंस पूरा का पूरा गोल्ड का नहीं बना हुआ। वो हैरान है, क्योंकि वो सोचता है कि बाहर से तो इसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका जो दिल है, स्टैचू का जो दिल है, वो लेड का बना हुआ है, गोल्ड का नहीं बना हुआ। तो ये स्वॉलो क्या सोचता है कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि पूरा का पूरा स्टैचू गोल्ड का बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट स्वॉलो ने कुछ भी नहीं कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। अभी वो देख रहा था कि जो स्टैचू है ये दुखी है, ये रो रहा है, और इसलिए उसने कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं किए। उसने उस स्टैचू के बारे में कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तुम लेड के बने हो, तुम पूरे के पूरे गोल्ड के नहीं बने। तो स्वॉलो ने अपने आप को रोक दिया, क्योंकि वो इस स्टैचू की फीलिंग्स को वैल्यू कर रहा था। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। फार अवे continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. तो ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ये अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। बड़ी म्यूजिकल सी वॉइस में वो कहता है कि बहुत दूर एक गरीब सी औरत का घर है। उसके घर की खिड़कियां खुली हुई हैं, और खिड़की से मुझे दिख रहा है कि वो एक टेबल पे बैठी हुई है। उसका फेस थिन है, वॉर्न है, यानी कि थका हुआ है, टायर्ड है। उसके हाथ बहुत रफ हो गए हैं और वो लाल हो गए हैं, क्योंकि उसमें सुई चुभ जाती है। ये जो वुमन है ये एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस मीन्स अ वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय सीविंग, जो कपड़े सिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेडी है ये कपड़े सिल रही है, तो जब भी ये स्टिचिंग करती है वो जो नीडल है वो उसके हाथ में चुभ जाती है। दैट इज वाई हर हैंड्स आर रेड. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the Queen's maids of honor to wear at the next court ball. फर्दर ये स्टैचू कहता है कि ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ये रानी की जो मेड ऑफ ऑनर है, जो रानी के साथ साथ चलती हैं बॉल में, उसके गाउन पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर कर रही है. फर्दर वो स्टैचू क्या कहता है, इन अ बेड in the corner of the room her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move.
Sword hilt is again the handle of the sword. Pedestal is a raised platform. जिस रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टैचू को रखा गया है. फर्दर स्टोरी कंटिन्यू करता है हैप्पी प्रिंस और वो कहता है कि वो जो लेडी है जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है गाउन पर, उसी का एक छोटा सा बच्चा है जो कि बीमार पड़ा हुआ है, उसे बुखार है और वो अपनी मम्मा को कह रहा है कि मुझे ऑरेंजेस खाने हैं, संतरे खाने हैं. बट उसकी मदर बहुत पुअर है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है. वो उसे सिर्फ पानी दे सकती है पीने के लिए, वो भी नदी का पानी, और इसलिए वो बच्चा रो रहा है. तो ये स्टैचू, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू स्वॉलो को रिक्वेस्ट करता है. वो उसे कहता है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मेरे स्वॉर्ड के हैंडल में जो रूबी स्टोन लगा हुआ है वो हैंडल में से निकालो और इस लेडी को ये रूबी दे आओ. वो कहता है कि मेरे पैर इस प्लेटफॉर्म से बंधे हुए हैं और मैं चल नहीं सकता, मैं यहां से मूव नहीं कर सकता. इसलिए वो स्वॉलो को रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरा ये काम करो, मेरी स्वॉर्ड के हैंडल में जो प्रेशियस रूबी स्टोन लगा हुआ है वो निकाल कर इस लेडी को दे आओ. I am waited for in Egypt, said the swallow. स्वॉलो कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. स्वॉलो कहता है कि मेरे दोस्त इजिप्ट में हैं, वो नाइल नाम वाली नदी के आसपास उड़ रहे हैं और वहां पे जो बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स लगे हुए हैं उनसे बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं. थोड़ी देर में वो सो जाएंगे, इसलिए मुझे उनके पास जल्दी पहुंचना है. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. फिर से हैप्पी प्रिंस के स्टैचू ने स्वॉलो से रिक्वेस्ट किया, उसे कहा कि प्लीज एक रात के लिए मेरे पास रह जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरे बिहाफ पे एक काम कर दो. बेचारा बच्चा बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है, इसलिए प्लीज गो एंड गिव द रूबी टू हर. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब फिर से स्वॉलो ने अपोज किया, उससे प्रोटेस्ट किया. उसने कहा कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं क्यों उस लड़के की मदद करूं, मुझे तो इजिप्ट जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said. But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. Happy prince इतना दुखी था कि स्वॉलो उसको देखकर सॉरी फील कर रहा था. एंड सो द स्वॉलो अगेन सेड कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है, मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास रहूंगा और कल सुबह तुम्हारा काम कर दूंगा. हैप्पी प्रिंस थैंक्स द स्वॉलो. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beaks over the roofs of the town. तो फाइनली स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड के हैंडल में से रूबी निकाला एंड द बर्ड टुक द रूबी इन इट्स बीक एंड फ्लू ओवर द टाउन. तो वो पूरे शहर को पार करता हुआ चला गया. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. Now when the swallow was on its way to the poor woman's house, it passed the cathedral. Cathedral is a church. And on the church tower, white colored marble angels were sculptured. तो कैथीड्रल के टावर के ऊपर व्हाइट कलर के मार्बल के बने हुए एंजल्स स्कल्प्टेड थे, यानी कि उनकी मूर्तियां लगी हुई थी. और फिर वो पैलेस पहुंचा, उसने पैलेस को भी क्रॉस किया और वहां से अंदर से उसे डांसिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी. अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी. तो जैसे ही ये स्वॉलो इस पैलेस को क्रॉस कर रहा था,
बालकनी में एक लड़की बाहर आई। बालकनी मीन्स जो पैलेस के ऊपर के फ्लोर्स थे उनके बाहर एक छोटा सा वरांडा बना होता है, दैट इज अ बालकनी। बालकनी में से वो बाहर आई और साथ में उसका लवर था। तो हो सकता है ये जो गर्ल है ये क्वीन की मेड ऑफ ऑनर होगी। तो वो कहती है कि आई होप मैंने अपना जो गाउन दिया हुआ है सीमस्ट्रेस को एम्ब्रॉयडर होना वो टाइम पर आ जाए। तो वो इसी गाउन की बात कर रही है जो वो लेडी एम्ब्रॉयडर कर रही है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. Lantern क्या है? लालटेन, जिसमें लाइट जगती है। Mast of the ship is the शिप के ऊपर जो सेल होता है, बड़ा सा पर्दा लगा होता है जिसकी मदद से शिप सेल करती है, उसे मास्ट भी कहते हैं। तो जब इस स्वॉलो ने रिवर क्रॉस किया तो रास्ते में शिप्स भी आई जिनकी सेल्स के ऊपर लैंटेन्स लगी हुई थी। और फाइनली ये स्वॉलो उस वुमन के घर पहुंच गई। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. Tossing means turning left and right. तो ये जो लड़का है इसे बुखार आया हुआ था इसलिए ये सो नहीं पा रहा था, ये अपने बेड में उलट पलट रहा था और उसकी माँ काम करते करते सो गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Thimble is a metal or a plastic cap with a closed end worn to protect the finger and push the needle in sewing. यहां देखिए इमेज में रूबी स्टोन के साथ एक जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ये थिम्बल है। दिस इज मेड ऑफ मेटल और ऑफ प्लास्टिक। ये एक ढक्कन के जैसा होता है जिसे कि आप उंगली पे अगर पहन ले तो नीडल का काम करते वक्त वो नीडल आपकी उंगली में चुभता नहीं है। तो इस स्वॉलो ने इस रूबी स्टोन को यहां पर रख दिया। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Slumber means sleep. Sank means to drown, but यहाँ पर ये लड़का कहीं ड्राउन नहीं हो रहा, ये नींद में जा रहा है। तो ये रूबी यहाँ पर रखने के बाद स्वॉलो इस लड़के के पास गया। जैसे कि इस लड़के की माँ तो सो रही थी तो इसका कोई भी ध्यान नहीं रख रहा था, तो इस बर्ड ने अपने पंख हिलाए इसके आसपास। उससे इस बच्चे को थोड़ी ठंडी हवा मिली और उसे अच्छा लगा और उसे ऐसा लगा कि वो बेटर हो रहा है क्योंकि उसे बेटर फील हो रहा था और इतना बोल के वो बच्चा सो गया। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो स्वॉलो है इसका भी दिल दया से भरा हुआ है, ये काइंड हार्टेड है। तभी एक तो ये हैप्पी प्रिंस का काम भी कर रहा है और साथ ही साथ उसने इस बच्चे का ध्यान भी रखा, इसलिए उसे अपने पंख हिलाकर उसने हवा दी ताकि उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर वापस से ये स्वॉलो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया और उसने उसे बताया कि उसने क्या क्या किया था। It is curious, he remarked. But I feel quite warm now, although it is so cold. Now the bird feels warm. Bird says it is very strange. मुझे अब थोड़ा warm feel हो रहा है जबकि मौसम तो बहुत ठंडा है। That is because you have done a good action, said the prince. So the prince says that you are feeling warm because you have done something good. तुमने एक अच्छा काम किया, तुमने किसी की मदद की, इसीलिए तुम्हें warm feel हो रहा है, although मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. हैप्पी प्रिंस की बात स्वॉलो सोचने लग गया और जब वो सोचने लग गया तो उसे नींद आ गई क्योंकि जब भी वो कुछ सोचने लगता था उसे नींद आ जाती थी। When the day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. Prospect means the thought of something. किसी चीज का जब विचार आप करते हैं। अगली सुबह this
Swallow bird went to the river and took a bath, and he was thinking that tonight I will reach Egypt. आज शाम को मैं अपने दोस्तों के पास इजिप्ट पहुंच जाऊंगा, और वो बहुत खुश था. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. Steeple is the high tower of a church. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is a steeple. तो इस स्वॉलो ने इस शहर के सारे मॉन्यूमेंट, सारी बिल्डिंग्स को विजिट किया, और फाइनली वो इस चर्च के टावर के ऊपर जाकर बैठ गया. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. जब रात हो गई, जब आसमान में चांद आ गया, rose means the past tense of rise. तो ये स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने पूछा, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? कमीशंस हियर मींस एनी वर्क. क्या तुम्हें मेरे से कुछ काम है? मैं इजिप्ट जा रहा हूं और मैं चलने वाला हूं. स्वॉलो, स्वॉलो, लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वॉलो. अब फिर से हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को रिक्वेस्ट किया कि तुम एक रात और मेरे साथ रह जाओ, और स्वॉलो ने रिप्लाई किया कि मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं. स्वॉलो, स्वॉलो, लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ garret. Garret is a small dark room at the top of the house. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. Withered means worn down. कोई चीज जो पुरानी हो गई है, जैसे कि फूल हैं जो पुराने हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, that is withered. Violets is a kind of a flower. तो यहां पर हैप्पी प्रिंस स्वॉलो को अपना सेकंड काम बता रहे हैं. वो कहते हैं कि बहुत दूर शहर के पार मैं देख सकता हूं कि एक छोटे से डार्क कमरे में एक यंग सा लड़का बैठा हुआ है. वो एक डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है जिस पर पेपर्स ही पेपर्स फैले हुए हैं, और वो बड़ी मेहनत से काम करने की कोशिश कर रहा है. उसके साथ में एक ग्लास पड़ा हुआ है जिसमें सूखे हुए फूल पड़े हैं. इससे हमें क्या पता लगता है कि बहुत देर से, बहुत दिनों से ये यहां पर बैठा हुआ है, तभी इसने फ्लावर्स भी चेंज नहीं किए. आगे क्या कहते हैं प्रिंस? हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. पोमीग्रेनेट इज अ फ्रूट जिसे हम कहते हैं अनार. तो फर्दर ये हैप्पी प्रिंस उस लड़के की डिस्क्रिप्शन दे रहा है. वो कहते हैं कि उसके बाल ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्प हैं, सूखे हुए हैं, जिससे कि पता लग रहा है कि वो बहुत दिनों से नहाया भी नहीं है. और उसके लिप्स पोमीग्रेनेट यानी कि अनार के जैसे रेड कलर के हैं, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी ड्रीमी आंखें हैं. यानी कि ये लड़का बहुत एम्बिशियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. Faint means weak and grate is the fireplace. Further Happy Prince कहता है कि इस लड़के ने एक प्ले खत्म करना है. ये एक राइटर है और इसने ये प्ले लिखकर थिएटर के डायरेक्टर को देना है, लेकिन इसमें लिखने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है. इस लड़के के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए इसके फायर प्लेस में आग भी नहीं जल रही और इसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, जिससे इसे कमजोरी फील हो रही है और ये काम नहीं कर पा रहा. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब स्वॉलो हैप्पी प्रिंस की बात समझ गया. उसे ये पता था कि हैप्पी प्रिंस इस लड़के की भी मदद करना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं एक रात तुम्हारे साथ रह लूंगा. इससे पता लगता है कि स्वॉलो का भी दिल बहुत अच्छा था. द स्वॉलो वॉज ऑल्सो काइंड हार्टेड. एंड फर्दर स्वॉलो ने पूछा कि क्या मैं इस यंग प्ले राइट को, प्ले राइट इज अ पर्सन हु राइट्स प्लेज, क्या मैं इस लड़के को भी एक रूबी स्टोन दे आऊं जैसे कि मैं उस वुमन को दे के आया था. सो द हैप्पी प्रिंस सेज, अलास आई हैव नो रूबी नाउ, said the prince. प्रिंस कहता है कि बहुत दुख की बात है, लेकिन अब मेरे पास और रूबी नहीं है.
उनके पास सिर्फ एक ही रूबी थी जो कि उनके स्वॉर्ड के हैंडल में लगी हुई थी, जो कि उन्होंने उस वुमन को दे दी थी। My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे पास अब मेरी आंखें ही हैं जो कि बहुत ही प्रेशियस और रेयर सफायर स्टोन की बनी हुई हैं, जिन्हें के बहुत साल पहले, हजारों साल पहले इंडिया से लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि मेरी एक आंख का सफायर स्टोन निकालो और उस लड़के को दे आओ। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play. He said, Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Weep means to cry. अब स्वॉलो इतना दुखी था ये सुन के कि हैप्पी प्रिंस अपनी आंखें उस लड़के को देना चाहता है कि वो रोने लग गया और उसने कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं आपकी आंखें बाहर नहीं निकाल सकता। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. लेकिन फिर प्रिंस ने स्वॉलो को ऑर्डर किया कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। So finally the swallow took out one eye, one sapphire out of the prince's eye, and the bird flew to the young man's garret. जिस रूम में ये लड़का रहता था, स्वॉलो वहां पर चली गई। उसके घर की छत में एक होल था, वहां से स्वॉलो कमरे के अंदर चली गई। Through this he darted. Darted means he pushed himself inside. ये जो लड़का है ये अपने हाथों में अपने सिर को रखकर बैठा हुआ था और इसलिए उसने बर्ड के विंग्स की फ्लटर, बर्ड अपने विंग्स को उड़ा रहा था, हिला रहा था, तो जो आवाज हो रही थी वो उस लड़के ने नहीं सुनी। और जब उसने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो उसने क्या देखा कि वो जो सूखे हुए वायलेट के फूल हैं उनके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा सफायर स्टोन पड़ा हुआ है। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. Appreciated means किसी की प्रेज करना। तो जब इस लड़के ने ये ब्यूटीफुल स्टोन देखा तो उसे लगा कि उसके किसी एडमायरर ने, कोई इंसान जो कि उसकी बहुत प्रेज करता है, उसे पसंद करता है, उसने उसे ये गिफ्ट भेजा है। और उसने सोचा कि चलो इसकी मदद से अब मैं अपना प्ले कंप्लीट कर सकता हूं। The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. अगली सुबह swallow bird एक हार्बर पर चली गई उड़कर। हार्बर क्या होता है? सी का किनारा, जिसे हम पोर्ट भी कहते हैं। और वहां जाकर वो एक शिप के मास्ट के ऊपर, मास्ट मीन्स द सेल, इसके ऊपर जाकर बैठ गई और जोर से बोली कि मैं इजिप्ट जा रही हूं। और जब आसमान में चांद आ गया यानी कि रात हो गई, स्वॉलो फिर से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चली गई। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। तो स्वॉलो ने एक बार फिर से हैप्पी प्रिंस को कहा कि मैं तुम्हें बाय करने आई हूं, मैं इजिप्ट जा रही हूं। स्वॉलो, स्वॉलो, लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? फिर से हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो बर्ड को रिक्वेस्ट किया कि एक रात के लिए तुम मेरे साथ और रह जाओ। It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. तो इस swallow ने कहा कि यहाँ पर तो विंटर्स आने वाली हैं और थोड़ी देर में बर्फ भी पड़ने लग जाएगी। इजिप्ट में मौसम वार्म है, वहां पर सन है, वार्म मौसम है और वहां पर क्रोकोडाइल्स भी लेजीली मड में लेटे रहते हैं और इसलिए वो कहता है कि प्लीज मुझे इजिप्ट जाने दो।
In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. Now this is the third assignment. Now the happy prince says that there is a match girl. She is a little girl. And who is a match girl? A girl who sells matchsticks. माचिस की तीलियां बेचने वाली लड़की. इसकी सारी माचिस की तीलियां गटर में गिर गई हैं. गटर क्या है? सीवेज, जहां पर सीवेज का पानी बहता है. जैसे कि मैचस्टिक्स गटर में गिर गई हैं, वो गीली हो गई हैं, तो वो खराब हो गई हैं. अब वो कुछ भी बेच नहीं सकती और इसलिए उसके पास पैसे नहीं होंगे. जब वो घर पैसे नहीं लेकर जाएगी तो उसके फादर गुस्सा हो जाएंगे और उसे मारेंगे, और इसीलिए लड़की रो रही है. फर्दर द हैप्पी प्रिंस सेज दैट उसने शूज भी नहीं पहने, बेचारी ने स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनी हुई, और उसने सिर भी नहीं ढका हुआ. काफी गरीब है वो लड़की, और इसलिए हैप्पी प्रिंस इस स्वॉलो को कहते हैं कि जो मेरी दूसरी आंख का सफायर है वो निकालो और जाकर इस लड़की को दे आओ. इसके फादर उसे मारेंगे नहीं. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. स्वॉलो कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और रह लूंगा, लेकिन मैं आपकी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, आप अंधे हो जाएंगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. तो फिर से हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं वैसे करो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो finally स्वॉलो ने एक बार फिर से हैप्पी प्रिंस का ऑर्डर ओबे किया, उसकी दूसरी आंख का सफायर स्टोन निकाला और वो उड़ता हुआ उस मैच गर्ल के पास चला गया. Swoop means to fly very low, बहुत ही नीची हाइट पर उड़ना. तो जैसे ही बर्ड ने उस लड़की को देखा, वो नीचे की तरफ झुककर उड़ा और उसने ये जो जूल है, ये जो सफायर स्टोन है, इस लड़की के हाथ पर रख दिया. लड़की एकदम से स्टोन को देखकर खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर चली गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. तो जब स्वॉलो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया तो स्वॉलो ने कहा कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, इसलिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास ही रहूंगा. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. लेकिन हैप्पी प्रिंस ने कहा स्वॉलो को कि नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. लेकिन स्वॉलो ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो प्रिंस के स्टैचू के पैरों में ही सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब स्वॉलो हर वक्त हैप्पी प्रिंस के पास ही रहता था और वो हैप्पी प्रिंस को कहानियां सुना रहा था. स्वॉलो उड़ के बहुत सारी अलग अलग जगहों पर गया था, इसलिए वो ये सारी स्टोरीज, उसने क्या क्या देखा था, वो हैप्पी प्रिंस को सुना रहा था. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, लेकिन लोगों की सफरिंग, लोगों की तकलीफों से ज्यादा अच्छी बातें और कोई नहीं है. वो कहता है कि सैडनेस से बड़ी मिस्ट्री और कोई नहीं है. वो कहता है कि सैडनेस, दुख, एक बहुत बड़ा रहस्य है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे किंगडम में कौन कौन है जो दुखी है. इसलिए वो स्वॉलो को कहता है कि जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो और तुम क्या क्या देखते हो मुझे बताओ. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry
in their beautiful homes while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. तो swallow ने इस बड़े शहर का चक्कर काटा और उसने क्या देखा कि जो अमीर लोग हैं वो खुशी खुशी अपने सुंदर घरों में रह रहे हैं. दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर पार्टिंग. और जो गरीब लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं वो गेट्स के बाहर बैठे हुए हैं. फिर वो डार्क लेन्स में गया, ऐसी लेन्स जहां पर लाइट भी नहीं है, जहां पर इतने गरीब लोग रहते हैं. और वहां उसने देखा कि बच्चे हैं जो कि भूख से तड़प रहे हैं और उनके फेसेस वाइट हो गए हैं और वो बेचारे इन काली अंधेरे भरी स्ट्रीट्स में देख रहे हैं कि काश कोई आए और उन्हें कुछ खाने को दे. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. ब्रिज का आर्कवे क्या हुआ, आपने देखा है कभी कोई रिवर के ऊपर अगर ब्रिज होता है ऐसी गोल शेप का, उसके नीचे जो थोड़ा सा लैंड है नदी के किनारों पर, वहां पर भी लोग रहते हैं क्योंकि उन्हें ब्रिज के आग की शेल्टर मिल जाती है. वो इतने गरीब होते हैं. तो उसने देखा कि ऐसे ही एक ब्रिज की आग के नीचे दो छोटे से बच्चे थे. वो एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे ताकि वो एक दूसरे को वार्मथ दे सकें. They were so poor they didn't have food, so they were trying to keep each other warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब दोनों बच्चे बेचारे भूख से तड़प रहे हैं और कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं. तभी वहां पर एक वॉचमैन आ जाता है जो कि उन्हें डांट कर वहां से भगा देता है और बेचारे बच्चे बारिश में इधर उधर घूमने लग जाते हैं. तो ये बच्चे क्या है, ये होमलेस हैं. दे डोंट हैव अ होम टू गो टू. दैट इज वाई वो ऐसे ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे. और जब वहां पर गार्ड आया, वॉचमैन आया, उसने उन्हें भगा दिया तो वो बाहर बारिश में भटकने लग गए. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. तो फिर ये स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने उसे बताया कि उसने सिटी में क्या देखा था. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. फिर हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि मेरे पूरे स्टैचू के ऊपर गोल्ड यानी कि सोने की परत लगी हुई है. तुम छोटे छोटे टुकड़े उतारो और जाकर इन गरीबों में बांट दो. जितने भी लोग जो लिविंग हैं उन्हें पैसों की जरूरत होती है और गोल्ड जब उन्हें मिलेगा तो उन्हें खुशी महसूस होगी. तो स्टैचू ने ये कहा कि मैं तो एक स्टैचू हूं, मैं मरा हुआ हूं, मुझे इस गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी जरूरतें हैं, इस गोल्ड से उन्हें खुशी मिलेगी, इसलिए जाकर ये गोल्ड उन्हें बांट दो. लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इस स्वॉलो ने इस स्टैचू के ऊपर से गोल्ड की लेयर्स को रिमूव कर दिया और जैसे जैसे वो गोल्ड की लेयर्स को रिमूव करता था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू डल और ग्रे कलर का दिखने लग गया क्योंकि गोल्ड की लेयर उतर गई. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. जैसे जैसे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू डल और ग्रे होता गया वैसे वैसे ये जो गरीब बच्चे थे ये खुश होते गए क्योंकि इन्हें गोल्ड मिल रहा था. स्टैचू का गोल्ड उतर के इन बच्चों के पास जा रहा था. तो क्या हो रहा था, स्टैचू डल और ग्रे होता जा रहा था और बच्चे खुश होते जा रहे थे क्योंकि अब उन्हें खाने को ब्रेड मिलेगी. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. तो फाइनली बर्फ आ गई, बर्फ पड़ने लग गई और जब बहुत ज्यादा बर्फ हो गई तो वो फ्रॉस्ट बन गई, वो जम गई. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. Everybody bent about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. तो सब लोग फर के कपड़े पहनकर घूम रहे थे. छोटे छोटे बच्चे थे जो कि स्कारलेट कलर की यानी कि रेड कलर की टोपियां पहन के इधर उधर घूमते थे और आइस के ऊपर स्केटिंग करते थे.
The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. स्वॉलो बर्ड को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस के स्टैचू के ही पास बैठा हुआ था. वो वहां से जाना नहीं चाहता था बिकॉज वो प्रिंस को प्यार करता था. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब ये जो स्वॉलो बर्ड है ये मरना नहीं चाहता था, इसलिए ये बेकर की जो बेकरी है जहां पर वो ब्रेड बेक करता था वहां जाता था और जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े उसे मिलते थे उसे खा के अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता था और अपने विंग्स को फ्लैप करता था, विंग्स को हिलाता था ताकि वो वार्म रहे. बट एट लास्ट he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब फाइनली स्वॉलो को पता था कि वो मरने वाला है. उसमें सिर्फ इतनी ताकत थी कि वो एक बार इस प्रिंस के स्टैचू के शोल्डर तक उड़कर जा सके. और वो प्रिंस को कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. विल यू लेट मी किस योर हैंड. अब फाइनली जब ये स्वॉलो मरने वाला है, दिस इज सो टचिंग. They love each other so much. They have so much affection for each other that this swallow, when he's about to die, he says to the happy prince कि क्या मैं तुम्हारा हाथ चूम सकता हूँ? Can I kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. Happy prince को लगा कि ये swallow इजिप्ट जाना चाहता है, इजिप्ट जा रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं खुश हूं कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. Happy Prince स्वॉलो को कहता है कि तुम यहाँ बहुत देर रह लिए, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ को नहीं मेरे लिप्स को किस करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. So both of them love each other so much. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. तो स्वॉलो बर्ड ने हैप्पी प्रिंस को कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, मैं डेथ के घर जा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मौत के पास जा रहा हूं. और वो कहता है कि डेथ स्लीप का भाई है. स्लीप में हम थोड़ी देर सोते हैं और डेथ में हम हमेशा के लिए सो जाते हैं, इसलिए डेथ और स्लीप बहन भाई हैं. और फिर इतना बोल के वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस करता है और उसके पैरों में ही गिर के मर जाता है. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. जैसे ही ये बर्ड मर के उसके पैरों में गिर गया, स्टैचू के अंदर से एक बहुत अजीब सी आवाज आई. और वो आवाज किस चीज की थी? स्टैचू का जो दिल था लेड का बना हुआ था, वो दो हिस्सों में टूट गया. क्यों टूट गया स्टैचू का दिल? अपने बिलवेड की डेथ देखकर. लेकिन ये कहा जाता है कि इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी वजह से ये दिल टूट गया. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अगली सुबह शहर का जो मेयर था, जो इंचार्ज था शहर का, वो अपने काउंसलर्स के साथ उस एरिया में घूम रहा था. और जब उसने स्टैचू को क्रॉस किया तो उसने स्टैचू की तरफ देखा और उसने कहा, हाउ शैबी. शैबी मीन्स अनटाइडी, डर्टी. उसने कहा कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना डर्टी लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है. How shabby indeed, cried the town councillors who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. जो टाउन काउंसलर्स थे उन्होंने भी कहा कि हाँ बहुत गंदा लग रहा है. ये जो टाउन काउंसलर्स थे ये मेयर की हर बात की हाँ में हाँ मिलाते थे और इसलिए उन्होंने भी कहा कि हाँ स्टैचू बहुत ही गंदा लग रहा है. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. मेयर ने नोटिस किया
कि स्टैचू की स्वॉर्ड के हैंडल में जो रूबी लगा हुआ था वो भी मिसिंग है, उसकी आईज में जो सफायर्स लगे हुए थे वो भी मिसिंग है, और उस पूरे स्टैचू पे जो गोल्ड की लेयर थी वो भी मिसिंग है. इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर. लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स. मेयर ने कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी भिखारी का स्टैचू है, और टाउन काउंसिलर्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. Proclamation means an order or a rule. तो फिर मेयर ने नोटिस किया कि स्टैचू के पैरों में एक बर्ड मरी हुई गिरी हुई पड़ी है. तो फिर यहाँ पर राइटर ह्यूमर क्रिएट करते हैं जब वो कहते हैं कि मेयर ने अपने टाउन काउंसिलर्स को कहा कि हमें ये ऑर्डर इशू करना चाहिए कि किसी भी चिड़िया को ये परमिशन नहीं है कि वो इस स्टैचू के पैरों में आकर मरे. नाउ दिस इज ऑल्सो फनी बिकॉज कोई ये चूज नहीं करता कि वो कहां पर मरेगा, और जब वो ऐसा ऑर्डर पास करेंगे तो ये ऑर्डर भी थोड़ा सेंसलेस है. एंड राइटर हैज रिटन दिस टू क्रिएट ह्यूमर, हमें हंसाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जो मेयर है ये कितना बेवकूफ है. और जो टाउन क्लर्क था उसने भी मेयर के इस बात को नोट कर लिया कि ठीक है हम ऐसा ऑर्डर इशू कर देंगे. सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. पुल्ड डाउन मीन्स उसको तोड़कर गिरा देना. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि अब ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का ये दिखने में सुंदर नहीं लगता, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें उसे तोड़ देना चाहिए. Then they melted the statue in a furnace. Furnace is a fireplace जहां पर मेटल्स को पिघलाया जाता है. तो उन्होंने स्टैचू को भी जो कि लेड का बना हुआ था एक फर्नेस में मेल्ट किया. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. Overseer is the supervisor and foundry is the workshop for casting metals. Foundry is a place जहां पर फर्नेस लगी होती है जहां पर मेटल्स को पिघलाया जाता है. तो इस फाउंड्री के सुपरवाइजर ने देखी एक अजीब सी चीज. क्या थी वो अजीब सी चीज? This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का जो दिल था जो दो हिस्सों में टूट गया था वो फर्नेस में पिघल ही नहीं रहा था, और इसलिए उन्होंने उसे एज इट इज कूड़े में फेंक दिया. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वाज आल्सो लाइंग. कोइंसिडेंटली उन्होंने जहां पर इस लेड के दिल को गिरा वहीं पर ये मरा हुआ स्वॉलो बर्ड भी गिरा हुआ था. तो दोनों मरने के बाद भी मिल गए. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. God ने अपने एक एंजल को, अपने एक मैसेंजर को कहा कि शहर की दो सबसे ज्यादा प्रेशियस चीजें मुझे लाकर दो. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. एंजल गॉड के पास क्या लाया? ये जो लेड का बना हुआ दिल था जो दो हिस्सों में टूट गया था, और ये मरा हुआ स्वॉलो बर्ड. You have rightly chosen, said God. For in my garden of paradise, this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold, the happy prince shall praise me. तो भगवान ने मैसेंजर को कहा कि तुम बिल्कुल सही चीजों को लाए हो, तुमने बिल्कुल सही चीजें चूज की हैं जो कि शहर की सबसे ज्यादा प्रेशियस और कीमती चीजें हैं. और फिर वो कहते हैं कि मेरे पैराडाइज के गार्डन में ये जो चिड़िया है ये हमेशा के लिए गाना गाएगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरे गोल्ड के शहर में हमेशा रहेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे. अब ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा प्रेशियस क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों चीजों के दिल गोल्ड के बने हुए हैं. गोल्ड के बने हुए हैं मीन्स नॉट कि ये गोल्ड प्रेशियस मेटल के बने हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट में इतने अच्छे हैं, इनके दिल इतने अच्छे हैं, इतने काइंड हार्टेड हैं, इतने सिंपैथेटिक हैं दूसरों के लिए, दैट वी कैन से दैट दे आर जस्ट लाइक दे आर मेड ऑफ गोल्ड. सो विद दिस वी हैव